السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ أيها الطلبة، سندرس في هذه الحصة صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة المجيء وصفة الإتيان، من كتاب العقيدة الواسطية، مؤلفه ابن تيمية رحمه الله. فأن المصنف رحمه الله جعل يذكر الآيات واستنبت منها واستدل منها صفتين من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة المجيء وهي صفة المجيء وصفة الإتيان، أو أن المصنف رحمه الله يذكر الآيات لإثبات صفة المجيء وصفة الإتيان. فالمصنف رحمه الله يذكر في كتابه 4 آيات التي يتعلق بهاتين الصفتين، الصفتين صفة المجيء وصفة الإتيان. فالآية الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فهذه الآية منظرها وسياقها تتعلق بيوم القيامة، یہ آیت جو ہے یہ قیامت کے منظر سے تعلق رکھتی ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی اس وقت اللہ رب العالمین کا مجیء، اللہ رب العالمین کا آنا، اور اسی طریقے سے فرشتوں کا آنا، ان تمام چیزوں کا اور اس مشہد عظیم کا ذکر کیا ہے۔ اور اس آیت کے اندر ان کفار اور مشرکین جو کہ قیامت کا انکار کرتے تھے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ کس طرح اللہ رب العالمین قیامت کے دن آئے گا۔ حل ينظرون، حل یہ نفی کے معنی میں ہے، ينظرون ای ينتظرون، الا جب حل اور الا یعنی استثناء آ جاتا ہے تو دونوں کا ہٹا کر کے آپ اس کو مثبت کا معنی کر سکتے ہیں۔ تو حل ينظرون ای حل ينظرون الا ان یاتیهم اللہ فی ظلل من الغمام، اور فی جو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، مصاحبت کے معنی میں ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کو فی کسی چیز کے اندر ہونے کے معنی میں داخل کر لیں گے تو گویا کہ بادل جو ہے اللہ رب العالمین کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اور یہ چیز مستحیل ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کا احاطہ اللہ رب العالمین کو گھیر نہیں سکتی ہے۔ اور یہ جو فی ہے یہ ظرفیہ نہیں ہے، یہ ظرفیہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، مصاحبت کے معنی میں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ، کیونکہ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کا علم واسع ہے، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کا احاطہ کر کے نہیں رکھے ہوئی ہے۔ تو حل ينظرون ان یاتیهم اللہ، کیا یہ لوگ، یہ مشرکین، یہ کفار اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آئے فی ظلل ای مع ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور تمام چیزوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ مشہد عظیم قیامت کے دن کا تذکرہ اللہ رب العالمین اس کے اندر کر رہا ہے کہ کیا یہ لوگ، یہ مشرکین اس بات کا انتظار کر رہے ہیں جو توحید کی دعوت کو نہیں مان رہے ہیں اور قیامت کے لیے مستعجل ہیں اور جلد بازی کیے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین آئے اور فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوں۔ کیونکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے جب قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے لیے آئے گا تو سب سے پہلے فرشتے کیا ہیں، صف بصف سب سے پہلے آسمان کے فرشتے، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے، پھر تیسرے آسمان کے فرشتے، ایسے ساتویں آسمان تک کے فرشتے
आसमान से नाजिल होंगे। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफते मजी और सिफते इतियान का जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन नाजिल होगा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, क़यामत के दिन आएगा। और इसी तरीके से उसी क़यामत के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी आयत, हल यंजुरून इल्ला अन यअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय रब्बुका औ यअतिय बअदु आयात रब्बिक, क्या कि ये लोग इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि फरिश्ते आए, औ यअतिय रब्बुक, या तेरा रब आए, कब, क़यामत के दिन, क़ज़ा के लिए, फैसले के लिए, औ यअतिय बअदु आयात रब्बिक, या तेरे रब की बाज़ निशानियाँ, यानी तुलुए शम्स मिनल मग़रिब। तो जो है इस आयत के अंदर कहा गया है हल यंजुरूना, क्या ये लोग इस बात के मुंतज़िर हैं अन तअतियहुमुल मलाइका, के फरिश्ते उनके पास आए, लिक़ब्ज़ अरवाहिहिम, लिक़ब्ज़ अरवाहिहिम, उनकी रूहों को कब्ज़ करने के लिए, या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आए हिसाब किताब के लिए, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की बाज़ निशानियाँ, बाज़ अलामात, तेरे रब की बाज़ अलामात, यानी तुलू शम्सी मिन मग़रिबिहा, यानी दो चीज़ों का तज़किरा जो कि मौत से पहले के वक्त, मौत से पहले का है, जब इंसान के तौबे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसके बाद उसकी वफ़ात होती है, चाहे वो क़यामत का दिन होगा, चाहे वो आदमी के आम मौत का दिन होता है। जब क़यामत कायम होगी उससे पहले तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। कब? जब इज़ा तलअतिश शम्सु मिन मग़रिबिहा, जब सूरज अपने मग़रिब से तुलू होने लगेगा। और इसी तरीके से तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है जब फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज़ करने के लिए, जब वो सकरात के अंदर होता है, उसकी रूह को कब्ज़ करने के लिए, हालत गरगरा में होता है, उसकी रूह को कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते आते हैं। उसके बाद क्या है? कज़ा है। तो उसी की मुनासिबत से यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का तज़किरा किया गया, अती रब्बुका लिल क़ज़ाई, और फिर जब वफ़ात होगी, चाहे क़यामत वाली वफ़ात होगी, उस वक्त जब क़यामत कायम होगी, या ये फिर दोनों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर तेरा रब हिसाब व किताब करने के लिए आएगा। तो गोया कि इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफते इतियान को साबित करने के लिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने ये आयत जिक्र की, और ये सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत फ़िअलिया है। और इसी तरीके से तीसरी आयत जो कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत मजी का तज़किरा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आएगा, कल्ला इज़ा दुक्खतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, कल्ला, ये हर्फ़े क्या है? तंबीह है। कल्ला, खबरदार, इज़ा दुक्खतिल अर्दु दक्कन दक्का, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी, हमवार कर दी जाएगी। यानी आज जो हम दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर जो समंदर देख रहे हैं, या नहरें देख रहे हैं, या तालाब देख रहे हैं, या पानी देख रहे हैं, और इसी तरीके से जो शजर देख रहे हैं, और इसी तरीके से जो हजर देख रहे हैं, चाहे वो आम हजर हो, चाहे वो हजर पहाड़ की शक्ल में हो, जो भी सब कुछ हो, क्या होगा? क़यामत जब कायम होगी, तमाम के तमाम यही पहाड़ कलअहनिल मनफूश होंगे, और इसी तरीके से तमाम के तमाम चीज खत्म कर दी जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन को क़यामत के बाद हमवार कर देगा। पूरी जमीन क्या हो जाएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जमीन को बदल देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कर देगा? इस जमीन को बदल देगा, और इस जमीन के अंदर चेंज, पूरी की पूरी चेंज कर दी जाएगी, और पूरी की पूरी हमवार कर दी जाएगी। क्या होगी? पूरी की पूरी जमीन हमवार कर दी जाएगी। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो आज तुम देख रहे हो कि तुमको रास्ते जाने में कहीं पहाड़ है, कहीं पेड़ है, या कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, तुम्हें परेशानी होती है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जब क़यामत कायम हो जाएगी, उसके बाद पूरी की पूरी जमीन हमवार कर दी जाएगी, पूरी की पूरी जमीन कूट कूट करके बराबर कर दी जाएगी। और उस दिन वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और तेरा रब क्या होगा? आएगा। तेरा रब क्या होगा? आएगा। और इसी तरीके से फरिश्ते भी आएंगे, और इसी तरीके से फरिश्ते भी आएंगे। और इसी जमीन के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, फयदरुहा
क़ाअन सफ़सफ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन को हमवार करके अकेला छोड़ देगा। ला तरा फ़ीहा इवजन वला अमता, और इसके अंदर कोई टेढ़ापन, कोई कजी, कोई और चीज नहीं होगी, बल्कि ये सारी चीजें क्या है, दक्का की ताकीद के लिए है कि पूरी की पूरी जमीन दक्कम बाद दक्का, कि पूरी की जमीन कूट करके हमवार कर दी जाएगी। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को ताकि इकट्ठा करने में आसान हो, लोगों को एक जगह इकट्ठा होने में, चलकर आने में कोई परेशानी ना हो, सारे लोग भागते हुए मैदान महशर की तरफ जाएंगे और वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आएगा और फरिश्ते भी आएंगे, जैसा कि इसका तज़किरा हमने दूसरी हदीस के अंदर पढ़ा, इससे पहले की हदीस के अंदर पढ़ा कि सफ़न सफ़ा, यानी सफ़ बसफ़, सफ़न मिन वराई सफ़िन, कि एक सफ़ के बाद दूसरी सफ़, एक सफ़ के बाद दूसरी सफ़, यानी पहले आसमान के फरिश्ते पे दर पे लगातार पहले आसमान के फरिश्ते नाज़िल हो जाएंगे, फिर दूसरे आसमान के फरिश्ते, फिर तीसरे आसमान के फरिश्ते, फिर चौथे आसमान के फरिश्ते, फिर पांचवें आसमान के फरिश्ते, फिर छठे आसमान के फरिश्ते, यहाँ तक कि सातवें आसमान के फरिश्ते भी नाजिल हो जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी बादलों के साए के साथ आएगा, जैसा कि इसे पहली की आयत के अंदर हमने पढ़ा है। तो मुसन्निफ रहमहुल्लाह इस आयत को जिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या सिफते मजी को साबित कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो चौथी आयत जिक्र की है मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने, उसके अंदर सराहतन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मजी का तज़किरा नहीं है, लेकिन मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने इस वजह से जिक्र कर दिया है कि वो आयत, इस आयत का मफहूम तकरीबन वही है जो अभी पिछली आयतें हमने पढ़ी हैं। तो गोया कि ये आयत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत मजी और इत्यान को शामिल और मुतज़म्मिन है। व यौम तशक्ककु स्समाउ बिल गमामी व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और जिस दिन आसमान बादलों से फाड़ दी जाएगी, व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, यानी आसमान बादल फटे जाएंगे, सब खत्म, और फरिश्ते क्या होंगे, नाजिल कर दिए जाएंगे। तो ये हालत कब होगी, जब फरिश्ते नाजिल होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नाजिल होगा। तो गोया कि अगरचे सराहतन इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नुज़ूल का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इत्यान का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मजी का जिक्र नहीं है, लेकिन मफ़हूमन और मुतज़म्मिनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के इत्यान का और मजी का इस आयत के अंदर जिक्र है। इसीलिए इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस आयत को, जो कि पिछली तीन आयतों के माने के मुताबिक है, वही मफहूम जो पिछली तीनों आयतों के अंदर है, वही मफहूम इस आयत के अंदर ही है। इसलिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने इस आयत को जिक्र किया और कहा, इसके अगरचे सराहतन तौर पर यह आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफत मजी को साबित नहीं कर रही है, लेकिन मफहूम और मुतज़म्मिन तौर पर साबित कर रही है। इसलिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफत मजी का जिक्र किया। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफतों में से दो सिफत, जो कि सिफातें क्या हैं, फ़िअलिया है, जो कि क्या है, सिफातें फ़िअलिया, एक सिफत मजी है, दूसरा सिफत इत्यान है, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहलुस सुन्ना वल जमाआ सिफत मजी को साबित करते हैं। क्या करते हैं, साबित करते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है, क्या हमको कैफियत मालूम है, कैफियत मालूम है। फनक़ूलु ला नअलमु कैफियत अल मजी' वल इत्यानी लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफते मजी और इत्यान की कैफियत का हमें इल्म नहीं है। लिअन्ना मा उखबिरना व मा अखबर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अन सिफतिहिल मजी' वल इत्यानी व कदालिका मा अखबर नबियुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सिफतिहिल मजी' वल इत्यानी फी सुन्ना अन-नबविय्या अल-मुतहहरा अस-सहीहा। न तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर अपनी कैफियत को, सिफत मजी की कैफियत को, और ना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफत मजी और सिफत इत्यान की कैफियत का जिक्र किया है। तो जो हमको मालूम नहीं है तो वो हम साबित नहीं करेंगे। भाई अगर किसी चीज की कैफियत को साबित करना है तो लाबुद्दा मिनल मुशाहदा इदा अरदना अन नुस्बितल कैफिय्या लिअय्यि शैइन फमा कैफ नुस्बित लाबुद्दा मिनर रुया, लाबुद्दा
من الرؤيا فنحن ما رأينا الله سبحانه وتعالى ونحن نؤمن عليه بالغیب. ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے، ہم غیبی طور پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. تو جب ہم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا ہے فكيف نثبت الكيفية؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. يعني أنت تفكر بذهنك وستجد الجواب، وكذلك أيضا ترد على هؤلاء المعطلة والمشبهة الذين والممثلة الذين يعطلون وينكرون ويرفضون صفات الله سبحانه وتعالى ولا يثبتونها. بھائی کیفیت ثابت کرنے کے لیے رؤیت شرط ہے، مشاہدہ شرط ہے. جب ہم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اللہ رب العالمین کی صفت اتیان اور صفت مجیء یا اس کے علاوہ دیگر صفات کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمارے ذہن کے اندر وہی قول ہونا چاہیے الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ. کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے یہ نہیں کہ صرف اور صرف استواء کی، بلکہ جتنے بھی صفات ہیں جن کا علم ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان صفات سے متصف ہے. فنحن نثبت تلك الصفات لله سبحانه وتعالى بدون تأنی وبدون أي شک، کہ ہم بغیر کسی شک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ رب العالمین کے صفات کو ثابت کریں گے. لیکن کیفیت کا معاملہ آئے گا تو امام مالک رحمہ اللہ کا قول والکیف مجہول، اللہ رب العالمین نے ہم کو نہیں بتلایا ہے. تو بھائی جو اللہ رب العالمین نے ہم کو نہیں بتلایا، جتنا کہا اتنا ہی تو کریں گے. افعل ما تؤمر ولماذا انت تتعب نفسك في اشياء انت ما اخبرت وما علمت. فهمتم ایھا المشائخ؟ اور اسی طریقے سے یہ آیت ان معطلہ پر رد ہے جو اللہ رب العالمین کے صفت مجیء اور صفت اتیان کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کی صفات کا پڑھنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس سے ہمارے دلوں کے اندر رغبت اور رحبت پیدا ہوتی ہے، خوف اور رحبت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم اللہ رب العالمین کی صفت کو ثابت کریں گے کہ اللہ رب العالمین نازل ہوگا، حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العالمین آئے گا، تو یعنی کس فیس سے، کیسے، ہاؤ ول فیس آور لارڈ دیٹ ڈے، کہ کیسے ہم اللہ رب العالمین کا، اپنے رب کا اس دن مقابلہ کریں گے، سامنے کھڑے ہوں گے. تو اس سے ہمارے دلوں کے اندر رغبت اور خوف اور رحبت پیدا ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے. تو یہ ہے المسلکیہ او الآداب المسلکیہ المستفادہ من قراءتی او من الایمان بصفت المجیء او بصفت الاتیان للہ سبحانہ وتعالی. ونکتفی بهذا القدر وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.